Once again, good afternoon, everyone. Okay. How many students are very much interested to become an engineer? Can you raise your hand, please? Okay. And how many students are very much interested to become a doctor? Very good. Almost everything electronics, digitalized, right? That only we are working on that in new technologies. So we are from research field. We came here to explain you how the technology is going high in the nation. So you people are very much interested in the engineering field. So for your future, we are going to give you each and every practical knowledge, everything. Mr. Salah, Mr. Said and Mr. Zabi. So from here, Salah is going to tell you about what we are going to teach you in our program, what you have to do in this program to show your interest and know faculty with yourselves so we can make new projects for your better future, for your better career. So from here, he is going to explain you about the new technologies, what we are using in our daily life. So from now, he is going to explain you about technologies. Familiar with the electronics which are used in our daily lives. So, can anyone tell me about electronics? Especially the 10th class students. They have studied about the electric current also. So all of you guys knows that we are using the electronic gadgets in our daily lives. So can you give me the examples of your electronic gadgets? Fan is your electronic gadget. Light. I'm telling you about the gadgets. Just tell me आप लोग daily life में electronic gadgets use कर रहे हैं. So can you give me the examples, perfect examples of your electronic gadgets? Mobile phones, laptop, computer, and the stand and what about the fan? Okay, just tell me about the electric current. What do you know about the electric current? I think it's in 10th. Give me the perfect definition of that. Okay, just sit down. Very good. So have you ever heard about atom? 10th class boys. Atom. Also, Give the answer. So your atom consists of what particles? So atom consists of your negative charges. So which one is your positive and which one is your negative? Yeah? Yeah. Yeah, you. Still. What? Say loudly, say loudly. So this is the, so your proton is your positive charge here and your electron is your negative charge. So since both of them are opposite charges, so they attract each other. So that is the law of the nature that the negative and electrons will be negative charge. So due to the attraction between the positive and negative charges, this electron rotates around your nucleus. Nucleus, what is the nucleus here? In nucleus, a positive charges are present. So with that, it attracts and they rotate. These electrons rotate across here. समझ में नहीं आया? समझ में आया?
क्या समझ में आया? बोलिए। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। सो molecule, it consists of, means one molecule consists of number of atoms here. So atom is nothing but the combination of your electrons and protons. Electrons और protons के combination को atom बोलते हैं. So protons will be present in your nucleus. Nucleus किसको बोलते हैं? Central part of your atom. So nucleus में क्या present है? Positive charges. Positive charges क्या है? Protons. So protons are there, and these electrons negative charges. So they rotate across your nucleus because of the attraction. जैसा मैं बोला अभी, ये positive charge है and ये negative charge है. So both of them are opposite. So opposite charges बोल रहे हैं flow of your electrons. Flow of means moving from one point to another point. Understanding? Come on. Electrons का flow को क्या बोल रहे हैं आप? Current बोल रहे हैं. So there are two type of currents here. क्या है दो टाइप के? क्या? Currents तो समझ में आ गया. किसको बोलते हैं current? Flow of electrons को बोलते हैं. हाँ. So next thing, currents are of two types. AC and DC. AC and DC पढ़े इसके बारे में? 10th क्लास वाले पढ़े शायद, या अभी नहीं पढ़े. So AC and DC. AC is your alternate current. Alternate current में समझाता हूँ. डायरेक्ट करंट. So किसी को मालूम AC और DC के बारे में? नहीं मालूम. So AC current means discontinuous रहता है. Discontinuous means continuous flow नहीं रहता. Positive peak भी रहती है and negative peak. Positive and negative peaks मालूम ना? Positive graphs as per the graph है. This is your x and this is your y axis. So ये positive हो गया, ये negative हो गया. So alternate current में क्या है? अपने को positive peaks भी रहते हैं and negative peaks भी रहते हैं. जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं ये वाले, तो जो अपन डेली लाइफ में जो यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट इज नथिंग बट कांस्टेंट फ्लो रहता है. कांस्टेंट फ्लो रहता. अब सपोज आपका फोन है, फोन कितने वोल्टेज पे वर्क करता? 3.6 और 5 वोल्ट्स फॉर एग्जांपल. वोल्टेज मालूम किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? हाँ, क्या? कम ज्यादा. पहले करंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद बोलता हूँ. सो करंट क्या है? आपको वोल्टेज कांस्टेंट रहता, समझे ना? कांस्टेंट नहीं है. सो डायरेक्ट करंट में क्या है? कैसा बोला मैं भी? कांस्टेंट रहता करंट, वो तो वोल्टेज. सो फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट्स है आपका. 5 वोल्ट्स पे आपका मोबाइल फोन की बैटरी देखे आप कभी? नीचे के लिखे हुआ था, उसके स्पेसिफिकेशंस रहते हैं 3.6 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स. सो दैट इज योर 5 वोल्ट्स DC. सो DC की क्या है? स्टोर कर सकते हैं आप, समझे ना? DC कैन बी स्टोर्ड एंड AC आपको ऑल्टरनेटली मिलता. ये क्या है? आपको डायरेक्टली थ्रू बैटरी मिल जाता. So this can be stored in your battery. So for example, electronic components में DC current use होता. Two type के currents बोला, एक AC and DC. तो AC क्या है? तो है क्या? Store में. अच्छा, main thing AC और DC को differ कैसा करते हैं? AC is your discontinuous. समझे ना? Sorry. In your AC, continuous flow of electrons will be there, and here discontinuous flow of electrons will be there, or discrete. volts, जो अपन डेली घर में यूज करते हैं. So that is your AC, and this fan. आप लोग बोलो ये फैन इलेक्ट्रॉनिक मींस AC पे वर्क करता है या DC पे वर्क करता है?
एग्जाम्पल बैटरीज बैटरी से जो चलता है उसको आप क्या बोले? कंस्ट्रक्शन बॉय बोल के आना So these two are the different type of currents. ये two type of currents आ रहे, दो type के, AC and DC. समझ में आ गया पूरा? So next thing we will go on here. So voltage is your potential difference. समझ में आया? Potential difference means, for example, we are passing a current through a circuit. So for moving, means electron move from one point to another. So difference between these 2 points is known as your voltage. समझ में आया ना? And next thing ये resistance है. Resistance क्या करता है? Resistance means opposing the flow of electrons. Means circuit में आपका जो भी current flow हो रहा उसको oppose करता, stop नहीं करता, totally stop नहीं करता. थोड़ा means for some kind of extent it will stop it. Means थोड़े उसकी limitations रहते. Based on that it will stop. तो resistance किसको बोलते हैं? Opposing a flow of electrons. Means current को oppose कर रहा. समझ में आया ना? So opposing of flow of electrons. समझ में आया ना? Yes. What is current? Current किसको बोल रहे हैं आप? Flow of electron is current. Potential, sorry, voltage. That is known as your potential difference. Potential difference. Next thing is your resistance. Resistance किसको बोल रहा है? So next. We are having now, we will show you that. First of all, active components, passive components are there. So two type of components, दो type के components है आपके पास in electronics. क्या है? Active and passive. So here active is your diode and transistor. ये क्या है ये बाद में समझाऊंगा मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एप्लीकेशंस देख लेंगे. एंड नेक्स्ट थिंग इज योर पैसिव. पैसिव में क्या आता है? रेसिस्टर और रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर. सो ये कंपोनेंट्स यूज करके आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है, मींस अपने डेली लाइफ में जो भी एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस जो भी है आपके, ये कंपोनेंट्स में रहते हैं. समझे ना? डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स एंड दीज आर योर रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर. मैं भी जो रेसिस्टेंस समझाया आप लोग को, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए ये डिवाइस यूज होता है. रेसिस्टर जो बोला ना, उसके लिए ये डिवाइस यूज होता है. मींस उन्हें so up to that it can be used. So we are having a circuit here. This is your circuit. ये फायर सेंसर है, समझे ना? फायर सेंसर. Yes, sir. हाँ, फॉर एग्जाम्पल अपने, हाँ बोलिए. फायर सेंसर. फायर सेंसर. सो आप लोग के जो भी मॉल्स में या बिल्डिंग्स में, जो लिफ्ट्स में, जो भी फायर सेंस मींस फॉर सेंसिंग द फायर, दीज कंपोनेंट्स आर यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल अपने कुछ मॉल्स में और कभी कुछ आग लग गई, कुछ फायर लग गया, तो एंड वो टाइम वहाँ पे ये सर्किट्स, ऐसे टाइप के सर्किट्स रहते हैं. ये रहता है या तो स्मोक सेंसर रहता है. सो उसके डिपेंडेंट क्या करते हैं आप लोग? एक सिस्टम बना देते हैं हर जगह, हर एक थोड़े डिस्टेंस पे लगे हुए रहते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दैट, जब भी स्मोक डिटेक्ट हुई या फायर डिटेक्ट हुई, एट दैट टाइम अलार्म ऑन हो जाता है. देखे होंगे आप लोग. सो वैसे ही रहता है. सो ये एग्जांपल है आपका. ये ब्लैक वाला जो दिखा, ये सेंसर है, IR सेंसर बोलते हैं. हाँ, IR. हाँ, ये दो रेसिस्टर, अभी जो रेसिस्टर समझाया हमें, ये ग्रीन वाले दिख रहे, ये दो रेसिस्टर्स है, उसके फिक्स्ड वैल्यूज रहते हैं. ये 100 आप लोग को बाद में समझ आता है. एंड ये बजर है, ये ब्लैक वाला जो दिखा. बजर मींस साउंड आती, मींस जब भी इंडिकेशन, जब भी फायर रहेगा जब आपको इंडिकेशन रहेगा थ्रो साउंड. सो नेक्स्ट, दिस इज योर LED. LED क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड है. ये भी एक डायोड ही है, बट इन्हें लाइट एमिट करता है. एंड नेक्स्ट थिंग, ये मेन कंपोनेंट क्या है आपका? ट्रांजिस्टर. ये ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ये आपका ट्रांजिस्टर है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटोमेटिक स्विच ऑन, मतलब ऑन एंड ऑफ होती है आपकी सर्किट.
सो अभी मैं समझाता हूँ आप लोग को। ये मैं बैटरी अटैच कर दिया उसको। नेक्स्ट किस तरह से विद्युत ऑन हो जाता सबको बता दे कैसा होगा। इंडिकेशन आता थ्रू ये बजर और कुछ भी और अटैच कर ले सकते हैं आप। ये एलईडी एंड बजर है फॉर इंडिकेशन एंड दिस इज योर ट्रांजिस्टर हियर। दिख रहा है ट्रांजिस्टर? सो विद द हेल्प ऑफ दैट आप लोग को क्या है टैंक का लेवल मालूम है। हाँ वही घर में जो आप लोग का टैंक यूज होता, अब क्या है टैंक फिल हो गया पानी भरता, आप लोग को कभी मालूम होता कभी नहीं। सो फॉर दिस वी आर यूजिंग दिस सर्किट। मैन पावर ज्यादा नहीं यूज करना, समझे। डिजिटलाइजेशन हर जगह डिजिटलाइज, फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर हो, कौन सा भी फ्लोर पे टैंक है। ऐसा है आप घर में खाली मोटर ऑन करके घर में बैठे बैठे समझ जा सकते कि मोटर टैंक फुल हो गया। वो कैसा फुल हो गया, ये ऐसे सर्किट अपन उसको इंस्टॉल करे बाद में अपने को खुद ब खुद आइडिया हो जाता कि घर में टैंक फुल हो गया। तो उसका मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या, वाटर लेवल इंडिकेटर। जब भी वाटर लेवल इंडिकेट हो जाता, जब आपको घर में बजर बजा देता, आपको घर पे फोर्थ फ्लोर पे जाने की, थर्ड फ्लोर पे जाके देखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की, उतनी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक मालूम हो जाता बजर नीचे। अब जैसा फोन का रिंग होता ना वैसे रिंग होता, आप मोटर ऑफ कर दे सकते। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम भी सेव हो रहा है, एक तो टाइम भी सेव हो रहा है आपका, और दूसरा चीज पानी भी बच रहा है। घर का पानी वेस्ट भी ना, ओवरफुल हो गया तो पानी भी बाहर जाता, बहुत सारा वेस्ट होता। तो ये चीज क्या है, डिजिटलाइजेशन है। अब ऐसा ये नहीं है कि खाली मॉल्स में यूज हो रहे या कहीं और यूज हो रहे तो हम घर में यूज में आराम देता। तो आपको मालूम हो जाता कि मेरे घर की गैस वेस्ट हो रही या किचन में जो भी स्टोर रहता है, जो भी रहता है वो ऑन है या ऑफ है, उससे आपको आइडिया हो जाता। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट, डिजिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर इसलिए आए कि आपको इन फ्यूचर भी काम आता और डे टू डे लाइफ में भी काम में आता। कोई ये वेस्ट होने वाली चीज नहीं है। आपको भी एक आइडिया होगा, क्यों बोले तो बहुत सारे गफलत हो जाती घर में भी, या तो इलेक्ट्रॉनिक वो इंसान नहीं है, वो एक्यूरेट वैल्यू देता। डिजिटलाइजेशन में क्या है, आपको एक्यूरेट देता, मतलब कोई झूठ नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता, उसको बराबर जब भी डिटेक्ट होगा वो बराबर आपको अलार्म करके बताता है। समझे ना, असल मेन चीज ये है। तो आप लोग इसके लिए मतलब इंटरेस्टेड है या सीखना चाह रहे या मालूम करना चाह रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड है हाथ उठा सकते हैं अपने। मतलब ये चीज बहुत सारे सर्किट थे अपने लाइफ में, मतलब जो यूज कर रहे थे, तो हर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आपको एक दो तीन ऐसे इंटरेस्टेड है। अगर आपको सही में मतलब कुछ सीखना है, जैसा कि अब स्कूल में तो खाली पोर्शन के लिए चलते अपन, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट है कि आप लोग को कुछ सीखना, ये चीज मालूम होना। हर वर्ल्ड में ये बहुत पुराना हो गया, अपने पास अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया, खाली अपन पोर्शन के लिए जा रहे हैं, समझे। खाली मेरे को पढ़ना है, पास होना है। पास तो कोई भी होता, हर कोई पास होता, फेल कोई भी नहीं होता। पास कैसा हो रहे, क्या चीज लेके पास हो रहे, कल के दिन आपके घर में बोल सकते हैं मम्मी रो या डैडी रो, मैं ये चीज स्कूल से सीख के आया। हम लोग का ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको सर बता के कैसा कैसा इंडिकेट हो रहा, कैसा हो रहा, आपको कुछ समझ में आ जाता। आप लोग को जस्ट बेसिक कंपोनेंट्स यूज करें। कोई बोले अरे हम लोग ये गेम खेलते हैं, इसमें सेंसर्स रहते, तो आपको सेंसर्स नहीं मालूम रहा तो आपको गिल्टी फील होता, शायद मैं भी सीखना था, ये मेरे को भी चीज मालूम होना चाहिए था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप लोग को हर चीज से
मालूमात होना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटलाइजेशन, हर चीज डिजिटलाइज हो गया, कोई भी एनालॉग नहीं चल रहा, मतलब मैन वर्क ज्यादा नहीं चल रहा। आप घर में बैठे बैठे हर एक चीज कर सकते, तो वही एक कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा एग्जांपल्स देखो, अब जैसे वाटर लेवल इंडिकेटर है, अब ये मेरा टैंक है, सपोज ये मेरे घर का टैंक है, और इसमें यहाँ तक ये फुल हो गया, मेरे को बाहर निकालना नहीं है। So with the help of your खाली ट्रांजिस्टर यूज करके आप लोग स्विचिंग कर रहे हैं, मीन्स ऑटोमेटिकली स्विच हो रहा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा। जब भी कंडक्शन, मालूम आप लोग को पानी में कंडक्शन होता, मीन्स करंट फ्लो होता पानी में भी, सो अभी भी कंडक्ट हो रहे, जब भी कंडक्शन हो रहा, एट दैट टाइम क्या हो रहा आपको, आपका इंडिकेशन दे रहा। इंडिकेशन आपका एलईडी भी रह सकता है, बजर भी रह सकता है, और या कुछ भी लगा दे सकते हैं, हाँ आपके ऊपर है। तो नेक्स्ट, तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेशन आ जा रहा वेदर द फुल है या नहीं है टैंक, समझ में आ रहा ना। तो अगर हम लोग को मौका मिला, शायद आप लोग हम लोग को मौका दिए या कुछ ऐसा रहा, तो इंशाल्लाह अपन वो चीज़ पे वर्क करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड सर हम लोग को सीखना है, ये चीज़ मालूम करना है, अगर आप लोग को है तो आप लोग आपके सर से कंसल्ट करिए, सर हम लोग को ये चीज़ सीखना है, ठीक है, ये चीज़ हम आपको मालूम करना है। तो इंशाल्लाह हम लोग आगे आप लोग को ऐसी थोड़े बहुत डेमो क्लासेस, मतलब जो भी आपको सिखाना है, इसको कैसा बनता, कैसा इसको इंटरफेस करते। अब ये देखो, आप इसको पीछे ये दिख रहा ना, इसको कनेक्शंस दिए, इसका कनेक्शंस कैसे रहते, इसको कनेक्शंस कैसा रहते, इसमें खाली आप क्या देख रहे हैं, ये छोटी चीज है, तो वो छोटे ही है। सीख, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा, अगर इंटरेस्ट है ये चीज सीखने में, तो आप लोग हमसे कंसल्ट करिए, या आपके प्रिंसिपल सर से, जो भी इंचार्ज है उनसे कंसल्ट करिए। इंशाल्लाह आप लोग को हम लोग बहुत सारी चीज सिखाएंगे, ऐसे ही ये भी सिखाएंगे, इससे और दूसरी चीज भी सिखाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, कौन इंटरेस्टेड है मेरे को बताइए, ये चीज मेरे बात में इंटरेस्टेड दिख रहा, सीखना है ना सबको, ये पढ़ना नहीं है, इसका एग्जाम नहीं है, इसमें पास होना नहीं है, फेल होना नहीं है, सीखना है। तो आप बोल सकते हैं मैं चीज ये मालूम है मेरे को, किसी को बोल सकते अरे वो उठने पर क्यों जा रहे हैं, ये चीज बनवा के लगा लो, आपका काम बच जाता, मैं बना के देता हूँ, ऐसा कुछ हो सकता ना, तो वो चीज है ये। तो सब इंटरेस्टेड है ना, यस बोलिए अगर जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, वेरी गुड। सर ये तो पूरा समझ में आ गया, मुद्रा का और ये पूरे सेंसर हम लोग के पास नहीं है, आप लोग के पास नहीं आता है। अगर ये लेवल आपसे कुछ बजर बजेगा, और बजर बजेगा, हाँ अभी मैं कर रहा हूँ, वो देखना साउंड थोड़ा बढ़ के बना, घर के लिए लगा सर, इसको बड़ा स्पीकर भी लगा सकते हैं, सर लगा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने नहीं, अगर एक्सपेरिमेंट करना अपना वायर अपन लोग ऐसा रखेंगे, ऐसा ही पानी को टच हुआ खुद ब खुद इंडिकेशन दे रहा जैसे ही आप पानी टच फील होगा उसको आपको इंडिकेशन दे देगा। इसमें वॉइस कमांड भी आता जैसे कि योर वाटर टैंक इज फिल, स्विच ऑफ द मोटर, ऐसा कुछ भी ऐसे कहा था कमांड। तो जैसे कि वॉइस कमांड पे लगा था बजर में, ये बजर का है इंडिकेशन, तो वॉइस कमांड बड़े कॉम्प्लेक्स ये वाटर लेवल के लिए, इसके लिए एक और एक सेंसर आता है गैस के लिए, स्मोक सेंसर बोलते हैं इसको। अब जैसे कि IR यूज़ करें तो ब्लैक वाला जो सेंसर था वो किसके लिए है, फायर सेंसर सबके लिए अलग सेंसर आता है। गर्म पार्टिकल्स, हॉट मॉलिक्यूल। सर आप ऐसा रखो, ऐसा रखो, और इसको ऐसा लगाइए, क्या ना ऐसा नहीं, ऐसा उसमें होते वो हाई इंटेंसिटी के रहते हैं, उसकी रेंज ज़्यादा रहती है, समझे। सो ये खाली प्रैक्टिकल यूज़ के लिए है। तो देख रहे हैं जब भी करो बजर और एलईडी करो।
चाहे तो पावर सप्लाई कन्वर्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली नहीं लगा सकते। अब आपका चार्जर क्या है, चार्जर के अंदर क्या है